So now we are once again here to discuss about transformer, and in the last run I discussed the EMF equation of the transformer. Okay, and then after, actually this was the foundation, and before this lecture I have added the bite of few minutes, that is the discussion regarding it. So now I'm moving towards the calculation part, so you will watch. Okay, so now we have the transformer, this we have transformer, right? So what we have to do, what we are going to find here, actually we have discussed all the loads, right? So E2 minus V2, and this was equal to E2, not E2, ES minus V2, and this was IS, and R E2 cos theta 2 and minus plus minus X E2 sin theta 2. So theta 2 is the load power factor, load power factor, and RE2 is equivalent resistance referred to secondary side, XS2 is the equivalent reactance referred to secondary side. So now we have, so a positive sign, and this positive sign for lagging power factor load. And as we remember, I told you earlier that this is inductive type load. This is negative is leading power factor, this is leading power factor load, and this is called capacitive type load. Fine. So now what we have, actually this is the foundation for voltage regulation. What we can write here, ES minus V2 and divided by ES into 100, and this is IS R E2 cos theta 2 and plus minus X E2 sin theta 2 upon ES into 100. This is defined as the voltage regulation. This we call voltage regulation. This is called voltage regulation. This is called voltage regulation. So voltage regulation we can define in terms of percentage. So voltage regulation is expressed as percentage, and it is defined as the change in terminal voltage from full load to no load or no load to full load, or no load to full load, keeping primary voltage constant. Primary voltage को कौन, so now this primary voltage, keeping primary voltage is constant. So primary voltage constant का मतलब कि आपने primary voltage को change नहीं करना, and no load to full load का मतलब कि I is equal to IS is equal to 0. I hope you better understand no load, and IS is equal to IS rated, and this is called full load. This is called full load. IS equal to 0 and IS is equal to IS rated, and that is called full load. So this is nothing but your voltage regulation. Fine. So now अब हम आगे की बात करते हैं, और मैंने आप लोगों से कहा था कि
I'll discuss per unit representation of the transformer or per unit representation of the system. So per unit representation of the system की अगर हम बात करते हैं तो आपको this is very important and बहुत दिनों से मैं ये कोशिश कर रहा था कि आपको पर यूनिट सिस्टम सिखाऊं मैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल, वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब यू कैन नॉट इग्नोर इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस, राइट. सो नाउ पर यूनिट सिस्टम में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक बेस वोल्टेज चूज करना, बेस की बात करते हैं हम, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल we choose base KVA और base MVA. या तो हम base KVA चूज करेंगे या तो base KVA यूज करेंगे. फर्स्ट, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. एंड सेकेंड स्टेप, वी चूज बेस करंट, बेस वोल्टेज. यहां आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेस वोल्टेज हम क्या अपनी मर्जी से चूज सकते हैं कहीं का भी, या हमें कुछ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जाएगा हम पे. यस, वी विल बी इम्पोज बाय सम restriction, that the some restrictions will be imposed on us, और हम लोगों को उस restriction के दायरे में ही काम करना है. there will be some limitation, and what is that limitation? कि we choose base voltage, क्या होगा, the voltage may be of HV और LV. ठीक है, तो बेस वोल्टेज हम चूज किसकी करेंगे, बेस वोल्टेज इज chosen as per the circuit in which we want to operate or to calculate. ये तो अजीब सी बात हुई. नहीं, अजीब सी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है. दिस इज नॉट अजीब सी बात, बहुत ही सिंपल सी बात है. और वो सिंपलिसिटी इसकी ये है कि मान लिया जाए कि आप दो ही तरह के वोल्टेज पे काम करोगे, या तो एचवी पे काम करोगे या तो एलवी पे काम करोगे. एचवी पे काम कर रहे हो तो एचवी की वोल्टेज को बेस वोल्टेज ले लेंगे, एलवी पे काम कर रहे हो तो एलवी की वोल्टेज को बेस वोल्टेज ले लेंगे. दैट्स इट, और कुछ नहीं इसमें. ये केवीए पूरे सिस्टम के लिए आप अज्यूम कर सकते हो. दिस केवीए अगर आपके सिस्टम में अपनी मर्जी से 1000 आपको सूट करता है 1000 एमवीए कर लो, केवीए कर लो, 10000 शूट करता है 10,000, जो आपका मन करे. यहां पर यू आर फ्री टू चूज एनी वैल्यू, बट माइंड इट, जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें सर्किट पर डिपेंडेंट होना पड़ता है और हम इसके मुताबिक यूज करेंगे. यानी कि फॉर एचवी साइड बेस voltage will be voltage of HV side. For LV side की अगर हम बात करें, for LV side अगर हम बात करते हैं for LV side के लिए, तो VB will be equal to, अब हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको आप VBH कर सकते हैं. और अगर हम LV की बात करें तो बेस वोल्टेज will be equal to voltage of HV साइड. जो उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज होगी वो आपको अज्यूम करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है. फाइन. IB डजंट मैटर, IB तो हम कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये दो बातें आपको याद रखनी थी. थर्ड बात मैं आपको बता देता हूं, इसको हमने क्या किया, लेट SB इज इक्वल टू बेस KVA और MVA, कुछ भी हो, MVA में हो या KVA में हो. VBL is equal to base voltage of LV side. So अगर हम IBL कैलकुलेट करेंगे तो SB डिवाइडेड बाई VBL कर देंगे, तो हमारे को लो वोल्टेज का
ये हमारा बेस करंट आ जाएगा। दिस इज आवर बेस करंट, दिस इज आवर बेस करंट, बेस करंट, बेस करंट मिल गया, बेस वोल्टेज मिल गया। अगर हम ZBL की बात करते हैं तो दिस इज कॉल्ड बेस इंपिडेंस, दिस इज बेस इंपिडेंस। और बेस इंपिडेंस का मतलब कि SB डिवाइडेड बाय सॉरी बेस इंपिडेंस VBL अपॉन IBL ओम, दिस इज योर बेस वोल्टेज। अब मैं यहाँ पे आपको ये फिर से वही बात नहीं बताने जाऊंगा कि क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिप्रेजेंट करते हैं कि वोल्टेज कांस्टेंट हो जाती है, मतलब आपको रेफरिंग से आप बच जाओगे, आपको रेफरिंग ऑफ द क्वांटिटीज आप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, डेटा आपका छोटा हो जाएगा। ये अब मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, ये हम ऑलरेडी बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। सो दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर लो वोल्टेज साइड। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। इसको मैं रब कर रहा हूं मैं। आइए जरा हम यहां पर बात करते हैं। और अब हम क्या करते हैं, Z हमने तीनों मिल गया, हमको बेस वोल्टेज मिल गया, बेस करंट मिल गया और बेस इंपेडेंस मिल गया। आइए अगर हम ZPU की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, Z इन ओम एंड डिवाइडेड बाय Z बेस। ठीक है, सो Z इन ओम अपॉन, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ZBL की बात करेंगे। IPU की बात करेंगे यानी कि पर यूनिट करंट, दिस इज कॉल्ड पर यूनिट करंट एंड दिस कैन बी रिटन एज I इन एम्पियर एंड डिवाइडेड बाय IBL। अगर हम VPU की बात करेंगे यानी कि पर यूनिट, दिस इज पर यूनिट इम्पिडेंस, पर यूनिट इम्पिडेंस। पर यूनिट वोल्टेज की अगर हम बात करते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू V इन वोल्ट एंड डिवाइडेड बाय VBL, राइट। सो ये हमारी क्वांटिटीज आएंगी। एक और क्वांटिटी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो बहुत ही आसान है। और वो हमारा आसान है कि अगर हमारे को Z पर यूनिट लेना है तो ZPU की हम अगर हम बात करें तो ZPU का मतलब Z इन ओम एंड डिवाइडेड बाय ZBL। और ये क्या लिखते हो आप, Z इन ओम and divided by VBL by IBL, and this is Z in ohm divided by VBL into IBL लिखोगे आप, है ना। अगर यहाँ पर हम ऊपर नीचे VBL से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई नुकसान भी नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, Z in ohm into VBL into IBL। क्या था हमारा ये, VBL into IBL बेस MBA SB एंड डिवाइडेड बाय ये क्या होगा, VB स्क्वायर यानी कि VBL स्क्वायर, बेस वोल्टेज का स्क्वायर एंड बेस MVA। आप पर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको याद रखने की जरूरत है। अब आइए हम हाई वोल्टेज साइड के लिए चलते हैं। सेम है, बस और कुछ भी नहीं करना, सेम है। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। अगर हम HB साइड की बात करते हैं, HB साइड तो क्या लेंगे हम, बेस KVA और MVA इज इक्वल टू हमारा SB होगा। ये कांस्टेंट है, सेम रहेगा। HB लिखना चाहो तो लिख सकते हो वाला, लेकिन ये SB आपका रहेगा। अब आइए बेस वोल्टेज किसको लेंगे आप, HB साइड की बात कर रहे हैं हम तो VBH को लेंगे हम। ठीक है, व्हाट विल बी बेस करंट, बेस करंट यानी कि IBH, तो क्या होगा SBH डिवाइडेड बाय VBH और SB सिंपली डिवाइडेड बाय VBH। ये हमारा बेस करंट आ गया। ठीक है, ये हमारा वोल्ट आ गया और ये हमारा MVA और KVA, जिसमें दिया हो आप उसको ले सकते हो। सो नाउ बेस इंपिडेंस क्या होगा, बेस इंपिडेंस ZBH is equal to VBH upon IBH ओम। फाइन, ये हमारा बेस इंपिडेंस आ गया। सो नाउ क्या लिख सकते हैं हम, पर यूनिट वोल्टेज VPU। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, VB V इन वोल्ट
and divided by VBH, base voltage. Base voltage. Okay. Per unit current, IPU, I in ampere and divided by IBH, base current. Per unit impedance, और यही नहीं, अगर हम इम्पिडेंस की बात करते हैं तो इम्पिडेंस का मतलब ये जितनी भी क्वांटिटीज आपकी ओम से रिलेटेड होंगी ये सब को इंक्लूड करेगा। अब हम आते हैं पर यूनिट इम्पिडेंस का मतलब ZPU की अगर हम बात करें तो Z R X इन ओम, ये सब को इंक्लूड करेगा एंड डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे ZBH, ठीक है। और फिर आ गया आपका, अगर हम इसको वोल्टेज और करंट के टर्म में लिखना चाहें तो Z इन ओम एंड डिवाइडेड बाय VBH इंटू IBH, ठीक है। और इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं Z इन ओम एंड दिस इज SB एंड डिवाइडेड बाय, बोलिए, बेस वोल्टेज का होल स्क्वायर, ठीक है। सो रिमेंबर, एक बात हमेशा याद रखिएगा, रिमेंबर अगर हम Z पर यूनिट की बात करते हैं तो हमारा क्या होगा, ऐसे R पर यूनिट, R पर यूनिट, सो R इन ओम डिवाइडेड बाय Z बेस। X पर यूनिट क्या होगा, X इन ओम डिवाइडेड बाय Z बेस। बेस हाई वोल्टेज का भी होता है, लो वोल्टेज का भी होता है, दोनों साइड का। एंड दिस इज Z पर यूनिट की बात करें तो Z इन ओम एंड डिवाइडेड बाय Z बेस, ठीक है। सो ZB लिख लीजिए, ZB लिया आपने तो ZB लिख लीजिए, ZB बेस इंपेडेंस, ठीक है। तो ये हमारा ZB जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, ZBL और ZBH। जहां आपको कैलकुलेट करना है आप वहां के लिए, हाई वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो हाई वोल्टेज का ले लीजिए, आपको लो वोल्टेज का कैलकुलेट करना है तो लो वोल्टेज का ले लीजिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन। अब क्वेश्चन ये आती है कि हम सीखेंगे कैसे, हम जानेंगे कैसे, हम समझेंगे कैसे, ठीक है। अब उसके लिए हम कहानी आपको हमने सब कुछ बता दिया आपको, यानी कि किसी भी X R X Z सबको हम बेस इंपेडेंस से ही हम चेंज करेंगे, राइट। तो अब बात आती है कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस ऑन ट्रांसफॉर्मर, हम ट्रांसफॉर्मर में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको समझेंगे कि हाँ ये हमारी क्वांटिटी सही आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए लेट्स मूव, आइए जरा इसको भी हम बात कर लें, जरा इसको भी मैं आपको सिखा दूं। सो एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, हमारे को ट्रांसफार्मर दिया हुआ है 10 kVA एंड दिस इज 1000 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100 वोल्ट ट्रांसफार्मर, ठीक है, विद R1 0.1 ओम, X1 4 ओम, R2 0.4 कर लीजिए, इसको 0.1 ओम कर लीजिए या 0.01 ओम कर लीजिए, 0.0 ओम, एंड दिस इज X2 इज इक्वल टू 2.5 ओम कर लीजिए, राइट। ये हमारे को एक ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दी हुई है आपको। अब आपसे कहा गया है कि आप पर यूनिट में कंपेयर करके हमको दिखाइए कैसे हमारा इसको हम यूज़ करेंगे। आइए लेट अस सी, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। देखिए अगर हम HB की बात करें तो सबसे पहले तो एक काम करेंगे हम कि सबसे पहले हम क्वांटिटीज़ को रेफर कर लेंगे, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज पर, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज पर। तो हम सबसे पहले अगर हम यहाँ पर, मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, यहाँ पर डायरेक्ट A लिखूंगा मैं 1000 by 100 एंड दिस इज इक्वल टू 10 greater than 1। मैं यहाँ लिख रहा हूँ RE1, RE1 मीन्स व्हाट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी साइड। तो प्राइमरी पर कितना है, 0.1 है, और इसको जब आप रेफर करके प्राइमरी पर लाइएगा तो क्या लिखिएगा, प्राइमरी इज ऑफ हाई वोल्टेज साइड, तो A² इंटू 0.01 कीजिएगा
so 0.4 plus 10 whole square into 0.01, so 0.04 plus 100 into 0.01, so this will be equal to 1.4 ohm, right? XE1 की अगर हम बात करें, XE1 की, तो XE1 को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x1 प्लस ए स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं r1 प्लस ए स्क्वायर r2, x1 प्लस ए स्क्वायर x2, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे x1 4 एंड प्लस 10 का होल स्क्वायर एंड x2 is 2.5, so what will be equal to 4 plus 100 into 2.5, so this is 0. So what is 250 into this is 254 ohm, right? Okay, so now XE1 and RE1 आपने पहुंचा दिया अपने पास, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर RE1 की जो वैल्यू है वो 1.4 ओम है, XE1 की जो वैल्यू है वो 254 ओम है, हमने इन दोनों को लिख लिया। अब आइए, अब अपनी क्वांटिटी को फिर से ट्रांसफर कीजिए, अब हम सेकेंडरी साइड पर चलते हैं, ठीक है। अगर हम RE2 लेना चाहें तब क्या होगा, तो RE2 लेंगे तो R2 प्लस लो वोल्टेज साइड पर आप आना चाह रहे हैं, यानी कि आप R1 को होल स्क्वायर करेंगे, R1 को डिवाइड करके लो बनाएंगे इसको, सो 0.01 प्लस R1 इज 0.4 एंड A इज 100, सो व्हाट विल बी, दिस विल बी 0.01 plus 0.004, right? Am I right? Yes, I am right. So this is 0.014 ohm. What will be XE2? XE2 is x2 plus x1 by a square. So what is x2? X2 is 2.5. 2.5 and this is x1, x1, so 4 by 100. So this can be right 2.5 and plus 0.04. So this is 2.54 ohm. All right. So low voltage side पर आप पहुंच गए, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लेंगे, we can write here. So RE2 is 0.04 and this is 2.54, XE2 is 2.54 ohm, right? So now the magic begins. आइए जरा देखते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा। हम बात करते हैं प्राइमरी साइड की, यानी कि हाई वोल्टेज साइड की बात करते हैं, ठीक है। HV साइड पर हम बात करेंगे, HV साइड पर, तो HV साइड का हमारा बेस क्या होगा, SB इज इक्वल टू 10 kVA, 10 इंटू 10,000, 10 kVA कर लीजिए, 10 kVA कर लीजिए, छोड़ दीजिए SB है, ठीक है। अब यहाँ की वोल्टेज क्या होगी, आप लेंगे VBH एंड दिस विल बी हाई वोल्टेज। मैंने कहा था कि जिस ये आपका HV है एंड दिस इज योर LV, जिस साइड की आप वोल्टेज लेंगे उस साइड की आप बेस वोल्टेज चूज करेंगे, तो ये आपका बेस वोल्टेज हो गया, ठीक है। व्हाट विल बी IBH इक्वल टू SB डिवाइडेड बाय VBH, SB 10 इंटू 1000 एंड दिस इज 1000 वोल्ट, कैंसिल 10 एम्पियर, राइट। What will be Z? ZBH. So ZBH will be equal to VBH divided by IBH. VBH is 1000 and IBH is 10. Cancel 100 ohm. Right? So now आइए अब हम बात करते हैं R1 की। HV साइड ये है R1. R1 PU की बात करते हैं my dear. So R1 PU will be equal to what? R1 in ohm and divided by ZBH. So R1 in ohm, what is R1 in ohm? 0.04. And what is ZBH? ZBH is 100. So what we can write? 0.004. Okay, यूनिट नहीं होती इसकी, ओम और ओम दोनों कैंसल, ठीक है। एक और फायदा यूनिट भी नहीं है। X1 PU की बात अगर हम करें तो क्या करेंगे, सो X1 PU की बात कीजिएगा तो X इन ओम है ना, X1 R1 एंड दिस इज ZBH माय डियर सर, वेयर इज X1, दिस इज 4 डिवाइडेड बाय 100, क्या लिखेंगे 0.04, ओके राइट। अब आप बोलेंगे कि IPU भी कैलकुलेट कर लो, कर लो IPU। सो IPU की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ की करंट इतनी होगी 10/10, सो दिस इज इक्वल टू 1 एम्पियर, और सॉरी 1। और VBH VPU की बात करोगे आप, VPU तो 1000 डिवाइडेड बाय बेस वोल्टेज इज 1000
कैंसिल 1, तो ये दोनों 1 pu आ जाएंगे, 1 pu एंड 1 pu। ठीक है, करंट इसकी करंट कितनी आएगी, करंट रेटिंग जो होगी यहाँ पर कितना आएगा, 10 एम्पीयर तो आएगा। हो आइए, हो गया इतना, ओके फाइन, ये मेरे को मिल गया। आइए अब हम बात करते हैं एलवी साइड की, यहीं पर मजा आने वाला है। एलवी साइड एसबी कितना रहेगा, 10 kVA, वीबीएल कितना रहेगा, 100, आईबीएल कितनी होगी, एस बी बाई वी बी एल, एस बी इज 1 इंटू 10 टू दावर इतना, ये कैंसिल, सो दिस इज 100 एम्पियर। सो व्हाट विल बी इक्वल टू जेड बी एल इज इक्वल टू वी बी एल अपॉन IBL, VBL 100 and this is 101 ohm, right? So what will be R2PU, क्या लिखेंगे, R2PU क्या लिखेंगे आप, R2 in ohm divided by ZPL, R2 0.01 divided 1 यानी कि 0.01 per unit। X2PU को क्या लिखेंगे, X2 in ohm डिवाइडेड बाई ZBL, कहाँ यहाँ 2.5 डिवाइडेड बाई 1, दिस इज 2.5 PU। सो एवरी क्वांटिटी वी हैव कन्वर्टेड, राइट, वी हैव नाउ। अब यहाँ पर हम इनको भी लिख लेते हैं, इन जितनी मेहनत करी हम लोगों ने। R1 PU लिया आपने, वो कितना आया, 0.0004। X1 PU लिया आपने, वो कितना आया आपका, 0.04, राइट। R2 PU लिया आपने, कितना आया, 0.01 PU, एंड X2 PU आपने लिया, वो कितना आया, तो 2.5 PU। आइए जरा देखें कहानी, कि हमारी कहानी सही ट्रैक पर जा रही थी या गलत ट्रैक पर थी। अब ये तो हमारे को मिल गया इतना, मैं इसको रब कर रहा हूँ, बाद में आप अपना वीडियो पॉज करके देखते रहिएगा। नाउ भाई क्या आपने कहा था कि हमें ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए RE1PU इज इक्वल टू R1PU एंड प्लस R2PU। क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, आइए जरा देखिए। ओह किधर गया R1PU कहाँ है, देखे तो 0.004, R2PU कहाँ है, 0.01। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, 0.014। क्या बराबर है, यस, किसके बराबर है, किसके बराबर है, 0.014 RE2, यानी कि आपका इंडिविजुअल अगर हम चेक करें तो ये दोनों वैल्यूज हमारे को बराबर मिलती हैं। ठीक है, बोलिए, फाइन। अब हम बात करते हैं XE1PU, क्या लिखेंगे आप, X1PU एंड प्लस X2PU। देखिए तो X1PU कितना है आपका, तो X1PU आया 0.04, और X2PU कितना आया आपका, और X2PU आया आपका 2.5। ये कितनी आएगी वैल्यू भाई, 2.54। कहीं मिल रहा है क्या आपको, ठीक है। ये हम लोगों ने, ये जो हम लोगों ने लिखा है ये वाली वैल्यू, ये हम लोगों ने ओम के टर्म में, हम लोगों ने RE1 को नहीं निकाला था, तो हम RE1 को भी कैलकुलेट करके भी निकाल लेंगे। RE1 को निकालिए आप, RE1 क्या था आपका, RE1 की वैल्यू थी 1.4 ओम, ठीक है ना। तो हमारा RE1PU क्या होगा, RE1PU का मतलब कि प्राइमरी पर, तो प्राइमरी का मतलब 1.4, ठीक है। तो RE1PU का मतलब कि हमारा प्राइमरी वाला, प्राइमरी आ गया। अब इसको हम बेस वोल्टेज से अगर हम ट्रांसफर करें तो प्राइमरी पर क्या है, बेस वोल्टेज हमारा ये है, ठीक है। तो इसको हम ओम में कन्वर्ट करें तो हम क्या लिखेंगे, बेस वोल्टेज बाय बेस करंट, वेयर इज बेस वोल्टेज 100, बेस करंट कितनी थी 10,008, 10,
ठीक है भाई। तो अगर हम इसको कैंसिल करें तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा 14 डिवाइडेड बाई 1000, तो हम क्या लिखेंगे 0.014 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, इतने के बराबर आया है नहीं आया है, देखिए तो। और Re2 किसके बराबर आया है, इतने के ही बराबर आया है, तो ये पर यूनिट में होगा, ठीक है, दिस इज इन पर यूनिट। सो हमारे को क्या मिला, Re1 Xe1 Xe2। अब आप Xe1 को भी कैलकुलेट कर लीजिए, Xe1 नहीं है लेकिन Xe1 ये आपके पास है। सो Xe1 को और कैलकुलेट कीजिएगा तो 251, ये आप पर यूनिट में लेना चाह रहे हैं, पर यूनिट लीजिए 250 एंड डिवाइडेड बाय कितना होगा 1 बेस वोल्टेज इंटू बेस करंट। बेस करंट कितनी होगी इसके 10 एम्पियर थी, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, ये कैंसिल, कितना आएगा 2.54, कितना आया पर यूनिट। माय डियर सर, Xe1 भी आपका इतना आया, Xe2 भी इतना आया, और आपका ये इतना आया, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं दिस इज Xe2Pu, और इसको लिख सकते हैं Re2Pu। ओके, एम आई राइट, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को हमने यूज करके ये प्रूव कर दिया कि चाहे आपका Re1Pu हो या Re2Pu हो, ये सब बराबर होंगे। देखिए Re1Pu इज इक्वल टू Re2Pu के बराबर है, Re2Pu आपने कैलकुलेट किया था 0.014, ठीक है, Re1Pu ने आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। तो ये सारी वैल्यूज जो है आपको पर यूनिट में मिलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग को पर यूनिट में कन्वर्ट कर दें, सेकेंडरी वाइंडिंग को पर यूनिट में वहीं पे कन्वर्ट कर दें, दोनों को जोड़ देंगे हम, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारे को इक्विवेलेंट मिल जाएगा। फिर हमें ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चाहे आप Re1 लो चाहे Re2 लो, दोनों तरफ बराबर ही आएगा, Xe1 लो चाहे Xe2 लो, दोनों बराबर ही आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इंडिविजुअल प्राइमरी को प्राइमरी पे ही पर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंडरी को सेकेंडरी में पर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, अर्थमेटिक सम, दोनों को जोड़ दिया, हमारे को इक्विवेलेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो अब आपको जरूरत पड़ेगी ट्रांसफर करने की, बिल्कुल नहीं जरूरत पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन। अब आइए, अब आपको और भी चीज दिखाता हूं मैं। ओके, अब हम अपने वोल्टेज रेगुलेशन पर आ जाए। तो वोल्टेज रेगुलेशन को आपने क्या लिखा, आपने लिखा वोल्टेज रेगुलेशन को क्या लिखा था, ES माइनस V2 डिवाइडेड बाई ES इंटू 100 इज इक्वल टू IS Re2 cos phi एंड प्लस माइनस IS Xe2 sin phi एंड डिवाइडेड बाय, आपने क्या लिया था, ES ले लिया था, है ना। तो अगर आप देखें तो वी आर कंसर्न्ड विद सेकेंडरी साइड, दिस इज ऑल क्वांटिटीज आर ऑफ सेकेंडरी साइड। तो सेकेंडरी साइड की बेस वोल्टेज क्या होगी, तो अगर हम सेकेंडरी साइड की अगर हम बेस वोल्टेज बात करें तो EBS यानी कि सेकेंडरी साइड बेस वोल्टेज, तो वहाँ की रेटेड वोल्टेज होगी, और वहाँ की रेटेड वोल्टेज कितनी होगी, ES होगी, ठीक है। अब हम IBS की बात करें, सेकेंडरी साइड बेस करंट, ठीक, कितनी होगी, तो वहाँ की रेटेड करंट होगी, यानी कि IS होगी। तो बेटा जी हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर ZBS लिख सकते हैं क्या, यानी कि हम ES बाई IS लिख सकते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर देखिए, आप देखिए यहाँ पर ये आपके पास ऑलरेडी है, यानी कि IS Re2 डिवाइडेड बाई ES यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं RE पर यूनिट, हाउ, बिकॉज Re2 इन ओम डिवाइडेड बाई ES बाई IS, और ES बाई IS क्या है आपका, ZBS है, Re2 डिवाइडेड बाई ZBS, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू Re पर यूनिट, है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम एप्सिलॉन X की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, Xe2 डिवाइडेड बाई ES बाई IS इज इक्वल टू Xe2 एंड डिवाइडेड बाई ZBS और ZB ओनली, बेस वोल्टेज, दिस इज योर बेस वोल्टेज,
फाइन। तो अब हमारा पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? सो हम यहाँ लिखेंगे पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन विल बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन एक्स कॉस फाई या कॉस थीटा टू लिया था, आई होप यस कॉस थीटा टू लिया था, आप कॉस थीटा टू ही लीजिए, कॉस थीटा टू एंड प्लस माइनस एप्सिलॉन एक्स साइन थीटा टू, एंड दिस इज योर वोल्टेज रेगुलेशन, दिस इज वोल्टेज रेगुलेशन इन पर यूनिट फॉर्म। इसको याद करिएगा, रट जाइएगा, बहुत काम का एक्सप्रेशन है ये। कितने मिनट्स के लेक्चर हो गए आपके? 31 मिनट्स। सो आई शुड ट्राई टू स्टॉप ओवर हियर। ओके, नाउ ये आपका पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन आ गया, पर यूनिट में आती है। अब इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे, बट नाउ दिस इज द केस ऑफ पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन। बहुत काम की चीज़ है, अच्छे से इसको समझ के कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। ओके फाइन, थैंक यू, बाय बाय।